after this. Number one, this is our sixth day, and we are talking today on the things of the brain, functioning of the brain, because functioning of the brain plays a huge role. And there are certain exercises to make. If one brain part of brain is dominating other, you see you will have always a certain problem with certain kind of things. Let me show you. The important thing to note that the most important thing when we say, I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, it is only for you. It doesn't mean that you have to become a people pleaser. When you are in the outer world, you have to be strong, aggressive, powerful, dominant, practical, rational, and you have to maintain your frame. So, anyone doing this doesn't think that, oh, he has to be so apologetic, so nice, so kind, so humble. No, it's like tit for tat. When you know that you are above the people, oh, where it is? Ah. When you know that you are above the people, you have to do one thing. You have to just be that person that you never was. Okay, इसको गैलरी मोड में स्पीकर. Okay. So you have to be that person who is very strong and who is unapologetic. Never lose your frame, never show unnecessary niceness. If you are the person who shows very unnecessary niceness, you are likely to get caught up in the trap. For example, this is our something about functioning of the brain. There are a lot of functions of the brain, but we don't have to go too much into the detail right now. Right now, we are only focused on one thing, that is the coordination of right brain and the coordination of left brain. So these are something called neurons, the nodes which connect to the brain. How many people you are here in weed addiction? Matlab they have been in the habit of smoking weed or something like that. So if you have that habit, stop that immediately. You know, I was talking with one of my friend who is a neurosurgeon, and he says the consequences and side effect of weed. He says अगर आप weed पीते हो तो ब्रेन में क्या होता है ना, ब्रेन में नॉड्स होते हैं. नॉड्स मतलब वो मैट्रिक्स जैसे नॉड्स होते हैं ना, हरी हरी लाइंस, एक डॉट से दूसरे डॉट, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट. तो जिस इंसान में सबसे ज्यादा नॉड्स होती है, वो इंसान की उतनी ज्यादा एबिलिटीज होती है. दे आर मोर क्रिएटिव, दे आर मोर इमेजिनेटिव, दे आर मोर डिस्कवरेबल, दे हैव मोर पोटेंशियल. और when you smoke, whether it is a weed, whether it is a weed है और दूसरा क्या होता है यार, चरस, इफ यू आर इनटू दोस थिंग्स, वो नॉड्स है ना, वो जल जाती है. और जब वो जलती है तो वही एक शरीर का ऐसा धातु है जो रीजनरेट नहीं होता. यू कैन नेवर रिक्रिएट देम. तो इफ यू आर वंस अ मद्दा, you will be a madda throughout your life. That is only the symptom. Second most important thing, in when we were in the poly, so there was one, पता नहीं उसका नाम क्या था यार, नाम तो भूल गया मैं. पोला बोलते थे हम उसको, पोला. तो he used to go in hometown and bring that all those kind of stuff, and he used to smoke. Then एक महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, एक साल, तो कुछ नॉर्मल ही था. लेकिन उसके बाद में हम उसको भंड बुलाने लग गए, भंड. बिकॉज उसको, उसको बात करने का तरीका ऐसा, क्या भाई किधर जा रहा था, अरे अभी तो मुझे खाना खाना है. स्लो, टू मच स्लो. Side effect, dark consequences. It hampers the game at the extreme level. Avoid smoking. The best people I truly admire and respect are the people who are not in any kind of toxic stuff. Best thing. Best thing. So if you are in that, avoid it. Wine is fine. That also sometime.
6 times in a month. And however, if you don't try, you are the best. Now, understand the hemisphere of brain. There are two functions of brain, right hemisphere and left hemisphere. ये हमको क्यों सीखना है? क्योंकि if you are a person who is in data science, algorithm, coding, back end, front end, Power BI, Tableau, project management, Scrum, Jira, Agile, mathematics, physics, scientist, research paper is however little bit fine. But if you are in that, then you have a huge problem. You know, this is called the brain dominance theory. One brain is always strong and dominant over another. If you see these are two hemispheres of the brain. The left one, अगर आपका बहुत ज्यादा भारी है तो आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल पर्सन। अगर आपका राइट बहुत ज्यादा भारी है तो आप देखोगे आप हवा में झूमते पंख उड़ा इधर उड़ रहे उधर ये कर रहे उधर ये कर रहे। दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। दैट्स सिंपल। मतलब the people who are too much outspoken, who much extroverted, who much outgoing are the person who are always at that zone. Let's understand something, the brain dominance thing. The idea that if one side is taking too much of your control, you would have difficulty in understanding lot of gameplay, lot of pickup, lot of psychological understanding. कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं बताना पड़ता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। कुछ भी बक के आ जाएंगे और उनके लिए वो सही भी काम करेगा। Make sure that both the parts are functioning together very well. If you are paying too much, अगर आप 8 से 10 घंटा कोडिंग कर रहे हो या फिर आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज ही बहुत छुड़ा रहे हो, यू विल सी दैट योर वन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप नहीं छुड़ा रहे हो तो समझ लो आपका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है। फिर आपको आपको बैठने में बहुत दिक्कत होगी। आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट ऑल। राइट ब्रेन इज अ क्रिएटिव वन। इस डायग्राम को ऐसा समझो, ये आपका राइट ब्रेन, ये पूरा आपके लेफ्ट हैंड साइड्स के एक्टिविटीज को एक्टिव कर देगा। ये है आपका लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन पूरा लॉजिकल। आपको देखना पड़ेगा आपका आप किस जोन में हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो आप राइट साइड की एक्टिविटीज बहुत अच्छी कर रहे हो। और आपका लेफ्ट साइड आपका ब्रेन बहुत अच्छा एक्टिव है तो आप राइट साइड की एक्टिविटीज बहुत अच्छी कर रहे हो। अगर इट्स वाइस वर्सा, लेफ्ट ये इधर का राइट, इधर का राइट, इधर का लेफ्ट। समझ लो, इतना ही समझो। अभी इसमें इतना समझो कि आपका राइट साइड की बॉडी के एक्टिविटीज कौन कौन से है। कोडिंग छुड़ाना हो गया, मैथमेटिक्स छुड़ाना हो गया, कैलकुलेशन, तो आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत ही तगड़ा हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब वही वही चीजें करते थे। कुछ सम पीपल आर वेरी गुड एंड लाइक लॉजिकल स्टफ, क्यूब छुड़ाने में, चेस खेलने में। if you are that person, avoid any kind of such activities to too much extent, क्योंकि आपने ऑलरेडी 8-10 घंटे वहां पे बैठ गए और घर में आके भी वही कर रहे हो। स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स इज द बिगेस्ट किलर ऑफ इम्बैलेंसिंग द माइंड। क्योंकि मैं बचपन में बहुत वीडियो गेम खेलता था। इफ यू आर इन दैट हैबिट, अवॉइड दैट। इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ सिटिंग एंड टू मच रीडिंग, मेंटल मास्टरबेशन, अवॉइड दैट। सम पीपल लव दैट। क्या पता क्या क्रेविंग होती है। मेडिटेशन दोनों को सिंक्रोनाइज करता है और बैलेंस करता है, क्योंकि आपको नहीं पता अंदर से क्या आएगा। मेडिटेशन दिमाग को खाली करता है। सो नो मैटर हाउ स्टूपिड यू आर, डू पेंटिंग। No matter how idiot you are, make sure that you are listening to the music continuously. Music is a very good factor in that. And उसमें भी idiot मत बनना। उसमें भी then people are like listening to a certain type of music. Why I am telling you all those things? Because I went to a soul coach training program जो हैदराबाद में विकाराबाद में होता है 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। उसको लेते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर न्यूटर और उनकी वाइफ लक्ष्मी मैम। अगर आपको जाना है तो आपके पास में अगर छुट्टी है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट दैट आपने जिंदगी में एक बार तो भी वो कोर्स जाना ही चाहिए। अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें ये सब चीजें सिखाते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह वो सब चीजें सिखाते हैं और ब्रेन का कॉम्बिनेशन भी सिखाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग आई हैव इन्वेंटेड, दिस आर व्हाट दोज साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड। और
वो हमेशा बोलते हैं कि अगर एक ब्रेन बहुत ज्यादा डोमिनेट हो गया है तो आपको दूसरे को भी ये करना है, अदरवाइज यू विल हैव इश्यूज। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट ना, the people who are too much logical will have always a relationship issues, extreme level. And the people who are left sided na, matlab too much in music will always have a monogamous issues, or they will have always have financial issues. The biggest inventor, whether it is a Steve Jobs, whether it is a Warren Buffett, whether it is a Elon Musk, whether it is, they, they have rights, मतलब their right side of the brain is so powerful, मतलब they are like too much logical people, sorry, left side of the brain is so powerful, they are too much logical people. वो बैठ सकते हैं, वो रिसर्च कर सकते हैं, वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, वो अल्गोरिदम कर सकते हैं, वो कोडिंग कर सकते हैं. दे आर टू मच इन एक्सट्रीम, एंड दैट्स द रीजन दे आर रिच. कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन सीए नहीं बन सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन आईआईएम्स में नहीं जा सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन आईआईटी नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन किसी भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकता है. बट इफ यू विल सी दोस पीपल हैव द सेम प्रॉब्लम, दैट रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से, एक्टिंग फूलिश, एक्टिंग सिली, एक्टिंग, एंड दोस पीपल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम मेंटेनिंग देयर फ्रेम. अगर वो सीख भी गए किसी तरह फ्रेम मेंटेन करना, उनका एक ईगो बन जाएगा, उनका फ्रेम ही काम नहीं करेगा, बोलेगा ये दिस गाय डिक, आई डोंट रिलेट. बट when the person who is very creative, which means that left side is very right side of the brain is very powerful, that is the creative brain, right side of brain, and their left side of the activities are very powerful, such as like music, mentoring, ये जिन लोग ए आर रहमान, डांसर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, छोटे मोटे डीजे, ऑर्केस्ट्रा वाले लोग, even the coaches and trainer, even and especially the pickup kind of coaches, they have a big level of sinusoidal something like, वो तो नेक्स्ट लेवल के डिप्रेशन में चले जाते हैं. पिक स्पेसिफिक पिकअप कोचेस, इफ दे आर घर में बिठा दिया, पिंजरे में डाल दिया, तो भाई दे कैन गो मैड, they can have a suicidal level of tendencies. You like RSD Tyler, look at Neil Strauss, 40 40 20 25 years सड़क पे ही घूम रहे हैं, 30 साल, Todd and other thing. That's the reason they are not good in marketing. Well, don't you think that they come into so much of micronesia and they are not even a millionaire and billionaire? And even the law of attraction coaches earns like 10 CR, 50 CR a year. Look at Tony Robbins' Grand Garden. They don't. Even the problem is that a lot of things are there. You have to operate from it. So at least 3 महीने में एक बार 2-3 घंटे के लिए पेंटिंग को टाइम दे दो. इवन इफ यू माइट बी द वर्स्ट पेंटर इन लाइफ, इफ यू फॉल इनटू द गाय हु इज अ कोडिंग, हु इज अ लॉजिकल गाय, 2-3 घंटे खुद को दे दो. आई नो माय मदर इज अमेजिंग पेंटर. शी कैन डिजाइन ऑल द ड्राइंग्स, अभी तो नहीं है, पर बहुत खतरनाक पेंटिंग कर ली थी मेरी मम्मी. ये गुण मेरे में आ सकता था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लाया. बिकॉज वी हैव टॉक्स अबाउट द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वी विल टॉक. हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे फैमिली के क्या क्या पैटर्न्स आए. एंड ट्रस्ट मी, इफ आई सेट, भले ही मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्किल सेट, क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं, बट आई गेट इन्वॉल्व इन इट. मतलब आई डोंट फाइंड इट बोरिंग, because that characteristic is coming from my mother. From my father I got some traits. You have to identify that. Then of course creativity is something that get flourishes. Best creative you are, the natural game you have, trust me, you don't need any then coach. फिर तो आप ऐसा ऐसे बोलोगे, ये भी कोई सीखता है क्या, एड़ा वेड़ा है क्या दिमाग से? मतलब दैट विल बी योर रियलिटी. मतलब यू विल बी लाइक, भूषण ये भी कोई सीखने वाली बात है क्या, इडियट? ये बता रहा है, वो बता रहा है, ये तो मेरे को इनग्रेड पता है भाई, मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है. भाई जिंदगी में कुछ नहीं किया तो चलेगा, रीड द क्रिएटिविटी बाय ओशो, यू विल बी बूम. बहुत अमेजिंग किताब है. मैं तो सोच लिया भाई, इस किताब को जब तक गेम कर रहा हूँ और जब तक गेम सिखा रहा हूँ, इस किताब को मुझे कम से कम 50 बार पढ़ना है. 100 बार तो है ही, गोल तो 100 बार है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है. और भाई तुम कितने जिल्लत भरे लोग हो, मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारे पास टाइम भी होता है आधा एक घंटा पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ते हो. यानी तुम नेक्स्ट किस्म के वाहियात लोग हो. बुरा लगेगा सुन के, बट दैट्स रियलिटी. क्रिएटिविटी बाय ओशो, अमेजिंग किताब. एंड डोंट रीड द बुक from a philosophical point of view, read the book from a game point of view.
जो जो एक एक चीज लिखी है भगवान ओशो ने, ऐसा ऐसा, उसको सोचो कि ये गेम में कहाँ अप्लाई होती है। कि मेरे गेम की जर्नी में, क्योंकि वो बहुत मिस्टेरियस और पजलिंग और बहुत अनसर्टेन चीजें बात करता है। और वो बोलता है क्रिएटिविटी वो नहीं है कि इसका ये देख लिया, उसका वो देख लिया, उसका ये देख लिया और अपना कुछ चेप के बना रहे। क्रिएटिविटी आपके अंदर अंदर से निकलती है, और आपके आपकी आत्मा का वो गुण पहले से होती है, और वो फ्लरिश होती है। दैट्स द पीपल से ना, द रियल गेम इज डिस्कवर्ड बाय और योर ओन सेंस और योर ओन यूनिकनेस। जस्ट जब लड़की बोलती है ना आपको, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, जस्ट बी योर सेल्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप चूते चूते हो और चूते की तरह रह रहे हो। उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब डीपर लाइन में ये होता है, when just be yourself means the most creative man that was inside you, जो आपने जिंदगी के फालतू बने में आप भूल गए, उसको डिस्कवर करो और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो फ्लोरिश करो। ये मेरे साथ में भी हुआ है। मेरे को भी दो तीन लड़कियों ने, जब गेम में नहीं था तो मैं बहुत प्रिटेंड करता था ऐसा ऐसा। मेरे को तो मुंह पे बोला है काफी लोगों ने, अबे तू बहुत प्रिटेंशियस है, तू फेक लगता है एकदम, तू साले तू तेरे मतलब तू बोलता कुछ और तेरे अंदर कुछ और चलता है। और इन लड़कियों ने भी बोला है मुझे। तब इतना सेंस नहीं था, तब उस चीजें समझती ही नहीं थी। और जब मैं कॉपी पेस्ट करने लग गया ना गेम, आई वाज अ वेरी लॉजिकल फैक्चुअल गाय। फिर मैं दोनों दोनों सीन्स में रहा हूँ टू अंडरस्टैंड। नाउ देयर आर सर्टेन रेमेडीज दैट यू हैव टू टेक केयर। लेट मी चेक द टाइम, अदरवाइज हाँ ऑलरेडी। अगर आपका लेफ्ट, अभी आप समझो, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग है, द लेफ्ट साइड एनालिटिकल लॉजिकल और आप बहुत फैक्चुअल है, और तो और आपने करियर भी ऐसा चुना है, तो भाई आप जिंदगी में, आपको अमीर बनने से तो कोई नहीं रुका सकता। शर्त, कंडीशन वो है कि आपको आपके काम से प्यार प्यार होना चाहिए। आपको 12 घंटे भी कोडिंग पे बता बैठा दिए तो लाइक यू विल बी लाइक दैट काइंड ऑफ गाय, लाइक जकरबर्ग, लाइक वॉरेन बफेट। वो बैलेंस शीट पढ़ना, अरे मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ा था मैंने, मैं तो बोर हो गया था साला, बोला ये किताब है। पहली बात तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, ऊपर से मैं स्टॉक मार्केट में, लॉकडाउन में सभी उस जोन में थे। लेटर ऑन I discovered it's not my cup of tea, it doesn't keep me alive, I'm just killing my own just to that. Creativity by Osho will give you that sense of like क्या है। And he says being creative will not make you rich, but it will definitely make you aligned, happy and most sparkling person। कुछ कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, मम्मी ने बोला तो ये कर लिया, पापा ने बोला तो ये कर लिया, उसने बोला तो ये कर लिया। अरे भाई तुम्हारा अपना कुछ सेंस है कि नहीं? लाइक आई विल टेल यू माय हार्ड थिंग, दैट समथिंग हैपेंड। लाइक हमारे बाबू बाबू का फोन आया तो बड़ा खुश हो गया, मैं बाहू हो गया एकदम। तो हमारे बाबू का फोन आ गया तो बाबू बोले सी राज, हाँ एवरीथिंग वाज गुड इन रिलेशनशिप एंड आर एवरीथिंग वाज वर्किंग वेरी गुड। तो शी सडनली समथिंग हैपेंड, एंड वो बोले कि यार उसके फैमिली कहीं तो भी इन्वॉल्व थी, और वहां पे हम एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म में थे। तो बोले देखो एक तो गेम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला बाबू इट्स हार्ड फॉर मैं, तुमको ही छोड़ना पड़ेगा, अच्छा तो नहीं लग रहा है सुना के तुमको, पर दिल तो मेरा भी टूटेगा। मैं गेम छोड़ूंगा तो अपने कंडीशन पे छोड़ूंगा, उसके नहीं। इट्स लाइक ना, एंड दैट्स द रीजन आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस गाय। आई एम नॉट एडमायरर वर्शिपर ऑफ हिम। बहुत से बातों में ये भी बंडल है, कुछ भी बातें फेंकते रहता है। जैसे व्हाट ही सेड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक फेक वो एकदम, बट दैट्स द, और मैंने अपना नाम ही रखा था द रिबेलियस राज। तो वो ओशो से इंस्पायर ही रखा था, क्योंकि ओशो हमेशा बोलता है ना, आई एम अ रिबेल, आई एम अ रिबेल, आई डोंट बिलीव। जब जब मैं स्पिरिचुअलिटी में पूरा पागल हो गया था और पूरा गिल्ट शेप में चले गया था, मैन इज बॉर्न फॉर डिवाइन सेक्स, आई लव रिचनेस, आई लव वुमन, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट। वो जब सुना मैंने उनको, और मैं बोला यार ये तो भाई ये तो बड़ा मास्टर आदमी है, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। हाँ इज नॉट माई गुरु, इट्स जस्ट अ फिलोसोफर आई एडमायर, because in a lot of things I don't agree with him. Yeah, of course. The more respect you have to understand, किसकी philosophy लेना और किसको respect करना, they both are different things. Yeah, of course, I respect more Sun Goenka. I respect more Satyana, Jedu Krishnamurti. I respect and honor more
दिस Baba Ramdas. I respect more than a lot of people, but Maharishi Mahesh Yogi, Rishi Prabhakar, these are people I will respect more than Osho. I don't respect him that much at that level, but I like his philosophy. His philosophy aligns with me. So coming back to the point, diverting from the topic, creativity is something discovered by you will discover your, but you have to understand what kind of activities you do. तो मैं एक शीट भेजूंगा तुमको 2 या 3 पेजेस की, उसमें आपको भरना है कि आप लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हो या राइट ब्रेन की एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हो, और उन एक्टिविटीज के हिसाब से आपको देखना है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। अगर आपको लग रहा है 8 या 10 घंटे आप यहाँ रह रहे हो, तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए हफ्ते में ये एक्टिविटीज करनी है जो आपके इस कॉम्बिनेशन को राइट करे। नाउ कमिंग, इन सब के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये होता है लेफ्ट साइडेड ब्रेन। लेफ्ट साइडेड ब्रेन का भाई, दे आर वेरी गुड इन रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल स्किल, रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल। राइट हैंड कंट्रोल अच्छा होता है उनका। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट राइट साइड ब्रेन, जिनका बहुत पावरफुल होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होता है, फट 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 चीजें समझते हैं, फेशियल रिकग्नाइजेशन, ये अच्छे लोग मेंटलिस्ट हो सकते हैं भाई। विजुअल परसेप्शन बहुत अच्छा होता है इनका, अवेयरनेस बहुत होता है इनको, सोशल इंटेलिजेंस तो ऐसे ही दिया होता है, मतलब ये सोशली चीजें बहुत पकड़ते हैं। दे आर द पीपल्स पीपल, दे आर द सोशल पीपल। सोशल थिंग्स मेक देम अलाइव। लाइक माई मदर, कुछ भी हो जाए, ही इज अ सोशल वुमन। इट्स लाइक उसको अगर ऐसे देखे मैं बैठा दूंगा कहीं तो पागल हो जाएगी, लेकिन व्हेन शी इज विद पीपल ना, शी विल बी लाइक अलाइव। फिर वो कहीं भी बीमार हो, कुछ भी हो। अभी मेरी मम्मी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एडमिट थी, सलाइन वलाइन लेना पड़ा। जैसे गजान महाराज का प्रकट दिन आया घर पे, अरे बाप रे बाप, 10-15 औरतें और भजन, वो कीर्तन, वो ये वो, कहाँ की बीमारी और कहाँ की खांसी और कहाँ का क्या, एनर्जी इज 10 टाइम्स है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। नाउ रेमेडीज, अगर आप बहुत ही घंटों आदमी हो, आप बैठ ही नहीं सकते 1-2 घंटे, तो भाई, एंड द बेस्ट, द मोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग इज ना सिंक्रोनिसिटी एंड एवरीथिंग, एंड दीज आर समथिंग पैटर्न्स। इसके बारे में, ये पैटर्न्स वैटर्न्स और ये क्या क्या रेमेडीज है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। We are not here to bombard ourselves with a lot of knowledge, but know the little. So understand this is something. Okay, let me इसको थोड़ा सा कम करते हैं। This is something. ये मेरा कर्सर दिख रहा है, दिस इज लेफ्ट ब्रेन। दीज आर योर थिंग्स। कर्सर दिख रहा है कि नहीं भाई? बेस्ट एग्जांपल हनी सिंह, ही इज एक्चुअली, या ब्रो, या राइट, ऑल द रैपर्स आर कम इनटू दैट, राइट? खतरनाक लेवल के लोग होते हैं भाई वो। सो अंडरस्टैंड दिस। लेफ्ट ब्रेन रियलिटी परसेप्शन, जो पता है वही बोल पाएंगे, जो नहीं पता वो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो गुरु थे पहले, हमारे जो पहले टीचर थे यदु भाई, वो हमेशा बोलते थे भाई तू कुछ भी बोल सकता है। मैं हमेशा सोचता था अबे मैं क्या कुछ भी बोलूं, कुछ भी बातें कर रहा है या मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। बट देयर वर सम अदर गाइस जो कुछ भी बोल सकते हो और भाई अमेजिंग बात करते थे। मैं कुछ भी बोलने जाऊँ तो मैं बहुत ही गंदा कुछ तो भी बात कर दूंगा। सो आई हैव दैट प्रॉब्लम विद मी। सो आई डू अंडरस्टैंड दैट। जब मैं सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया तब मुझे समझ में आया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आई नीड टू फिगर इट। अभी 2-3 साल गेम करने के बाद में शायद मेरी लेफ्ट साइड कमजोर हो गई, राइट साइड बहुत स्ट्रांग हो गई। अभी अभी ऐसा है। और दैट्स द रीजन इट हैपेंस ना, द पीपल इन द गेम आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। एक एक समझो कैसा होता है। गिव मी एग्जांपल। अगर आप स्टेट गेम खेलते हो, बहुत ज्यादा स्टेट गेम, मतलब अभी अगर आपका 6-7 महीने का, 8 महीने का गैप गिर गया और आप लाइक, आप सोशल रोबोट हो, गेम के सोशल रोबोट, और आपको हमेशा स्टेट पे रिलाई करना पड़ता है, दर 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 दर, तो आपका ये जोन आ जाएगा कि यार मैंने 6 महीने से गेम नहीं किया तो मैं फिर से जीरो तो नहीं हो गया। तो उसको है ना, 3-4 दिन ऐसे रीसेट होने को लग जाएंगे। वो अगर फील्ड में भी जाएगा ना तो उसको आधा 1 घंटा थोड़ा सा रीसेट होने को लग जाएगा। दैट विल बी द प्रॉब्लम विद यू। So nothing bad, nothing wrong, but it's 10:26. So tomorrow the same time we will be connect on the same topic. थोड़ा हम बात करेंगे, फिर उसको उसके बाद में हमको बात करना है विच आर
ऑक्सीटोसिन के बारे में, सेरोटोनिन के बारे में, डोपामिन के बारे में, और इसका इम्पैक्ट गेम पे कैसा होता है। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और ये सब बैलेंस करता है मेडिटेशन। अपने इश्यूज सॉर्ट करो, अपने मेडिटेशन सॉर्ट करो, दैट सिंपल, वन वर्ड फिलोसॉफी is as good as that. So important thing is keep sharp at 9 and सुबह 6:30 बजे. Okay guys, so we'll